Morning students. In the previous class we were discussing about the motivation, and we have explained what is motivation. I have discussed about it, and I gave you the features of motivation, where I told you that motivation is psychological phenomenon, which that means internal feeling it is, and goal directed behavior. That means everybody will have a goal, and to achieve that goal they will be motivated to do this work. And motivation can be either positive or negative. These are the features what I was discussing. And motivating one person is not an easy task. It's a very toughest job. That is a complex decision, complex process, because every individual will have their own needs and need to be satisfied. So there's different opinions will be there, individual interest will be there, so motivating an individual will be very difficult, and that is a complex process. And once the needs satisfied, then another need will arise. So motivation is a continuous process. So ये सारे चीज़ हम डिस्कस किए थे मोटिवेशन में, फीचर्स के बारे में. इंपॉर्टेंस में क्या दिखे कि मोटिवेशन हेल्प्स इन चेंज इन नेगेटिव टू पॉजिटिव. बट नेगेटिव एटीट्यूड रहा तो अगर कोई हमें मोटिवेट कर रहा है तो उस मोटिवेशन से हमारा नेगेटिव थाट्स पूरा निकल जाके हम पॉजिटिव बन सकते हैं. एंड मोटिवेशन इम्प्रूव्स द परफॉर्मेंस लेवल, क्योंकि कोई अगर बोल रहा है कि शाबाश अच्छा कर रहे हो तो दैट इंकरेज, दैट मोटिवेशन विल हेल्प अस इन डूइंग बेटर, और ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने में सपोर्ट करता है. दैट विल हेल्प अस इन अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशनल गोल. मोटिवेशन क्रिएट सपोर्टिव वर्क एनवायरनमेंट, क्योंकि सब मोटिवेट कर रहे हैं तो सब लोग अपना सपोर्ट करने में रेडी रहते हैं, क्योंकि दे नो दैट कि ऑर्गेनाइजेशन इज़ helping them. So definitely in return they'll support the organization and activities. Motivation will leads to help the management in introducing the changes, because until unless the employees are ready to accept the changes, if you implement the changes, it will be difficult for the organization to success. So all the employees, if they accept the change, that would be beneficial for the organization. So motivation may help you to implement the changes, and motivation also reduces the employee turnover. Maslow has given the theory which we have discussed, that is needs theory of motivation. So as I mentioned, ki hierarchy theory is given by Maslow. He has made into 5 parts, 5 this one is basic psychological needs, safety security needs, affiliation belonging needs, esteem needs, and self actualization needs. To begin with what I discussed in the previous class, that is basic psychological needs. फर्स्ट कोई भी हो, ह्यूमन बीइंग का फर्स्ट नेचर क्या होता है कि पहले अपने रोटी कपड़ा और मकान के लिए कोशिश करेंगे. दैट मीन्स फर्स्ट दे वांटेड टू फिल देयर स्टमक, एंड दे वांट टू हैव हाउस, दे वांट टू हैव दैट बेसिक नीड्स. दिस इज कॉल्ड एज अ बेसिक नीड्स दे वांट. सो जिसके बगैर नहीं रह सकते उसको पहले सेटिस्फाई करेंगे, क्योंकि उसके बिना तो जी नहीं पाएंगे. हंगर, स्लीप, थर्स्ट, ये सब हमारे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी होगा. मतलब हर एक के लिए तो रोटी कपड़ा मकान जो गया गया, लेकिन उसमें से मेन इंपॉर्टेंट है पहले रोटी, क्योंकि बिना रोटी के कपड़ा मकान क्या करेंगे हम पहले. सो फर्स्ट रोटी और कपड़ा, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. रोटी पहले पेट पूजा करो और जियो. व्हेन ए ह्यूमन बीइंग इज अलाइव, देन ही कैन थिंक अबाउट द फ्यूचर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल द बेसिक नीड्स, दैट इज़ हंगर, स्लीप एंड थर्स्ट. पानी पीने की जो होती है, पानी पीना, सोना और खाना, ये 3 पहला इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी है. सो ह्यूमन बीइंग पहले स्ट्राइव फॉर इट, मतलब इसके लिए कोशिश करेगा. सो दिस इज़ कॉल्ड एज साइकोलॉजिकल नीड्स. सो बेसिक नीड्स है. वंस इफ इज़ हैप्पी दैट डेली रोटी इसको मिल रहा है, हैप्पीली मिल रहा है, रोटी का कोई सब कुछ प्रबंध हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और देन ही विल गो फॉर द सेकंड, दैट वन सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स के लिए. Sacred and security needs में, like where we can say as when you talk about the safety and security needs, as I mentioned earlier, there are 2 types of safety needs. One is physical safety.
फिजिकल सेफ्टी मतलब अगर फ्यूचर में इसको कुछ एक्सीडेंट हो गया, इफ़ ही लाइक ही वांटेड टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट एक्सीडेंट्स, अटैक्स, कुछ भी हो, डिसीजेस, जो लॉन्ग टर्म डिसीजेस या कुछ डिसीजेस, बीमारियाँ, अदर अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स, कुछ अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स अगर फ्यूचर में आए तो कैसे हमें प्रोटेक्ट करना है, उससे कैसे अपने आप को बचाना है, इसके लिए पहले हम प्रबंध कर लेते हैं। जैसे आप मान के चलिए कि फ्यूचर के लिए हम इंश्योरेंस लेते हैं, जो एक्सीडेंट हो गया तो उसके लिए इंश्योरेंस लेते हैं विच कवर्स द रिस्क, और कुछ अमाउंट हम बाजू में रखते हैं कि वी सेव सम अमाउंट इन पर्टिकुलर। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, एक्स्ट्रा मनी चाहिए। तो एक्स्ट्रा मनी चाहिए तो एक्स्ट्रा एक्टिविटी करना होगा। तो इसके लिए हमारा सेकंड नीड वही है कि एक बार अगर रोटी ख़त्म हो गया, मतलब खाने का प्रबंध हो गया, तो ह्यूमन बीइंग विल गो फॉर सेफ्टी, सिक्योरिटी नीड्स। उसमें होगा पहले फिजिकल नीड्स, फिजिकल सेफ्टी जो एक्सीडेंट अटैक से होगा, और दूसरा होगा इकोनॉमिक सेफ्टी। इकोनॉमिक सेफ्टी मीन्स लाइवलीहुड एंड अरेंजमेंट फॉर द ओल्ड एज। अब तो ठीक है, हम यंग हैं, कमा रहे हैं, मिल रहा है पैसे, एंड वी आर हैप्पी विद द things what we are getting, and we are very active, energetic, we can earn money. But once we get into old age, how we can survive? So human being plans from today that what would happen if I go to a old age home. So उसके लिए think करेगा, that is security, that is economic security. और तीसरा है affiliation, what you can call as belonging needs. Belonging needs we can also call it as a social needs बोल सकते हैं इसे। That means he need for an affection now, और सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस होना चाहिए, फ्रेंडशिप होना चाहिए, एक्सेप्टेंस के बारे में सोचेगा, फ्रेंडशिप के बारे में सोचेगा, सोसाइटी मतलब क्लोज, सबसे अपने पीर ग्रुप में, मतलब दोज हु आर अपने पीर ग्रुप में हैं, उसमें उनसे ऑर्गेनाइजेशनल पीर ग्रुप बोलते हैं ना, जो को वर्कर्स हो उनके साथ मिलजुल के रहना, उनके साथ। ये हमारा थर्ड स्ट्रैटेजी है कि सब लोग हमें अच्छा मिले, फ्रेंड्स अच्छा मिले, ये हमारा थर्ड नीड है। और फोर्थ नीड है एस्टीम नीड्स। दैट मीन्स वी नीड्स स्टेटस, हमें एक स्टेटस चाहिए, रिकग्निशन चाहिए कि सोसाइटी में हमें कोई पहचाने कि इस तरह से हमारा एस्टीम नीड्स होता है। द फाइनल वन इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स का मतलब है डिजायर्स टू मैक्सिमाइज वाट एवर पोटेंशियल यू हैव इन योर इंडिविजुअल। तुम्हारे इंडिविजुअल में जितना भी पोटेंशियल है उसको मैक्सिमाइज करना। इट मीन्स यू कैन सिंग नाउ, सपोज यू एज्यूम दैट यू कैन सिंग, तो ये हमारा टारगेट, तुम्हारा मैक्सिमाइजेशन है गुड सिंगर, म्यूजिशियन बनना, गुड सिंगर बनना, राइट, गुड सिंगर बनना, मैक्सिमम पोटेंशियल। तो दैट इज़ योर टारगेट। अगर तुम पोएट हो, अगर कुछ कविताएं लिखते हो, तो तुम यू वांट टू लाइक रीच टू ए टॉप लेवल, स्पेशलिस्ट पोजीशन पे पहुंच जाने का, वही तुम्हारा मैक्सिमम लिमिट है। दैट इज़ व्हाट वी कॉल एज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। So Maslow has given all these 5, and what he says is based on these particular needs you have to motivate the employees। क्योंकि कोई फर्स्ट स्टेज में है, कोई सेकंड स्टेज में है, कोई थर्ड स्टेज में है। अगर सपोज़ मान के चलिए किसी के पास खाने के लिए खाना मतलब रोटी नहीं है, अगर हम उसको बोल रहे हैं कि मैं जॉब प्रोटेक्ट करूंगा तुम्हारा, मतलब तुम्हारा सिक्योरिटी प्रोवाइड करूंगा, फ्यूचर में तुम्हारे लिए मैं ओल्ड एज होम में तुम्हारे लिए मैं जो पेंशन मिलेगा उसके लिए अभी से मैं इन्वेस्टमेंट करता हूं, तो क्या सोचेगा पहले, अरे भाई पहले मैं तो अपने पास तो पहले रोटी नहीं है, व्हेन वी डोंट हैव फूड टू ईट नाउ, and how can I expect that in future I'll get, or why I plan for the future। so पहले उसका प्रायोरिटी होती है कि उसके रोटी के लिए प्रबंध करो। that is the motivation for him at that particular stage। and those who are already earning the food, then your second motivation goes to the second stage, that you motivate him by providing the security। so ये Maslow's theories दिया हुआ है। as per his theory these are all the points what based on it। so यहाँ पे एग्जाम्पल है, देखिए साइकोलॉजिकल बेसिक नीड्स के लिए मोस्ट बेसिक इन द हायरार्की, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग कि दिस इज साइकोलॉजिकल, और यहाँ पे हम एग्जाम्पल्स ऑफ नीड क्या कर रहे हैं, एग्जाम्पल, और मैनेजमेंट क्या प्रोवाइड कर रही है, मैनेजमेंट हाउ द नीड्स आर सेटिस्फाइड बाय द मैनेजमेंट। एक तो है मोस्ट बेसिक इन द हायरार्की, ये फर्स्ट प्रायोरिटी है जहाँ पे स्लीप, थर्स्ट, हंगर होती है, तो पहले इनको पेमेंट और सैलरी देने से उनका नीड फुलफिल हो जाती है। एंड द सेकेंड स्टेज सेफ्टी एंड सिक्योरिटी प्रोटेक्शन,
जहाँ पे तुम ऑफर जॉब और विथ पेंशन और विथ सिक्योरिटी ऑफ परमानेंसी अगर दे दे तो उनका सेकंड नीड भी फुलफिल हो जाती है. एंड द थर्ड वन इज रिफर ऑफ अफेक्शन सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस. तो फॉर्म के अपॉर्चुनिटी टू वर्क सोशली मूव होने के लिए ऑर्गेनाइजेशन में एक दूसरे से मदद करने के लिए अगर हम उनको बता दें कि बिल्डिंग एंड परमानेंट लाइक परमिट द वर्कर्स टू अपॉर्चुनिटी टू इंटरेक्ट सोशली विद द एम्प्लॉयज़, then definitely that will satisfy their third need. और फोर्थ है इंक्लूड फैक्टर्स सच एज सेल्फ रेस्पेक्ट. ये होना है तो इफ़ यू रिकॉग्नाइज गुड परफॉर्मेंसेज एंड प्रमोट देम एंड प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर एम्प्लॉयज़ टू फील अ सेंस ऑफ अपॉर्चुनिटी अगर आइडेंटिफाई करेंगे तो यू कैन फुलफिल द फोर्थ, satisfy the fourth one. The drive to become what is one capable of belonging these needs include grow self fulfillment. ये फोर्थ वन है हमारा जो हम बताए थे अभी. दिस वन इज़ द फोर्थ लास्ट वन. सो इफ़ यू गिव हिम ए फ्रीडम ऑफ टेकिंग द डिसीजंस एंड इस क्रिएटिविटी को अगर हम encourage करेंगे ऑर्गेनाइजेशन में तो ही कैन रीच टू द टॉप लेवल एंड ही कैन satisfy his fifth need. So this is what the way we can promote in the organization what Maslow's has suggested us. So apart from this, if you see the motivational not only वेस्ट विथ दिस पर्टिकुलर शाबाशी देना या तो नोटिस बोर्ड पे चिपकाना या कुछ ऐसे बातों से बोलने से नहीं होता है. समवेयर वी नीड टू गिव देम फाइनेंशियल बेनिफिट, समवेयर नॉन फाइनेंशियल इज वो वर्क्स आउट. कुछ लोग पैसे के लिए मोटिवेट होते हैं, कुछ लोग खाली रेस्पेक्ट और स्टेटस के लिए मोटिवेट होते हैं. तो जो स्टेटस के लिए मोटिवेट होते हैं उनके लिए नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव देना होगा और जो पैसों के लिए मोटिवेट होते हैं उनके लिए फाइनेंशियल इंसेंटिव. So let us see here what is incentive. Incentive means the measure, all measures which are used to motivate people. Whatever the measures you take to motivate, that is called incentive. That means if you are asking an employee, if you produce 100 units instead of producing 50 per day, I'll give you 1000 rupees as a bonus. This is what incentive. If you say that if you do excellently and participate, I'll give a certificate of participation. This is motivation. That is called incentive. So incentive nothing but the measures what you are taking for promoting him or motivating the people to improve the performance is called as the incentive. So incentive can be of two types, financial and non-financial. ये financial का list है और non-financial का list है. Financial का मतलब होता है पूरा payment in the form of cash, monetary benefits. जैसे हम पे एंड अलाउंस देते हैं, उनको बोनस देते हैं पैसों के रूप में, मतलब मनी इन द फॉर्म ऑफ मनी. इफ़ यू गिव देम दैट इज़ कॉल्ड एज मॉनिटरी बेनिफिट्स, दैट इज़ कॉल्ड फाइनेंशियल इंसेंटिव्स. और दूसरा है पैसे नहीं देंगे, दूसरे फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेंगे, स्टेटस देंगे, रिकग्नाइज करेंगे, दिस इज़ कॉल्ड एज नॉन फाइनेंशियल. सो लेट अस सी इन डिटेल व्हाट आर ऑल दिस. फाइनेंशियल में फर्स्ट है पे एंड अलाउंस, मतलब जो हम सैलरी देते हैं रेगुलरली, वेजेस पेमेंट करते हैं, दैट कम्स अंडर फाइनेंशियल. सेकंड इज़ बोनस. ये है कि सैलरी और वेज के अलावा कुछ एक्स्ट्रा मनी अगर हम ऑफ़र करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज अ बोनस. गिविंग एन एक्स्ट्रा मनी ओवर एंड अबव द सैलरी एंड पे इज़ कॉल्ड एज अ बोनस. दिस इज़ ऑल्सो इन द फॉर्म ऑफ मॉनिटरी बेनिफिट. तीसरा है प्रोडक्टिविटी लिंक्ड वेज इंसेंटिव. प्रोडक्टिविटी लिंक्ड वेज इंसेंटिव मतलब हम लोग यहाँ पे जितना प्रोड्यूस करोगे उस प्रोडक्टिविटी बेस पे तुम्हें अमाउंट मिलेगा, इंसेंटिव मिलेगा, दैट इज़ कॉल्ड एज प्रोडक्टिव वेज बेस्ड इंसेंटिव. मतलब वेजेस विल इंक्रीज. जैसे आप प्रोडक्टिविटी बढ़ाएंगे आपका वेजेस इंक्रीज होगा, तो अगर प्रोडक्टिविटी कम हुआ है तो आपका वेजेस कम होगा. सो दिस इज़ कॉल्ड एज फाइनेंशियल बेनिफिट यू आर गिविंग. एंड देन प्रॉफिट शेयरिंग. Sometimes we may give the employees a sharing in the profits of the business apart from the salary or as a part of the salary. हम employees को organization में appoint करके do well, if you perform well we will give you share in the business, profit, share of profit in the business. Then one more है retirement benefit. आप लोग जानते हैं जैसे पेंशन होती है, ग्रेट्युटी होती है, these all comes under retirement benefits. स्टॉक ऑप्शन और को पार्टनरशिप. स्टॉक ऑप्शन का मतलब है बेसिकली एज पर द कंपनीज एक्ट, अगर एम्प्लॉई आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, मतलब अपना सर्विसेज आफ्टर रेंडरिंग सर्विसेज, द ऑर्गेनाइजेशन विल गिव हिम ए चांस ऑफ बाइंग द शेयर्स ऑफ द कंपनी.
शेयर्स का मतलब है कि कंपनी में प्रॉफिट का जो मतलब कंपनी का इन्वेस्टमेंट, कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए ओनरशिप टुवर्ड्स ओनरशिप इक्विटी शेयर में अगर आप शेयर कर सकते हैं तो आप यू बिकम द इक्विटी शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी एंड यू बिकम द पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट, यू बिकम द पार्ट ऑफ द शेयर होल्डर, मतलब कंपनी के प्रॉफिट्स में हिस्सेदार हो जाएंगे। सो उसके लिए आपको ऑप्शन दिया जाएगा, यू कैन बाई द शेयर्स। अगर पार्टनरशिप फॉर्म रहा तो को पार्टनरशिप के लिए इनवाइट करेंगे वो लोग, कंपनी रहा तो शेयर्स परचेस करने के लिए। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में परक्विजिट्स भी रहते हैं। परक्विजिट्स का मतलब है द एक्सपेंसेस विल नॉट बी पेड इन द फॉर्म ऑफ कैश, इंस्टेड इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ फैसिलिटी। लाइक आपको एक गार्डनर प्रोवाइड करना और गार्डनर का सैलरी कंपनी पेमेंट करती है। जैसे आपको कार प्रोवाइड करना, कार का एक्सपेंडिचर कंपनी पेमेंट करती है। सो दिस इज कॉल्ड फैसिलिटी। अलाउंस और फैसिलिटी में दो डिफरेंस है। द कंपनी विल गिव यू द मनी एंड यू विल बी आस्क्ड टू स्पेंड फॉर an activity is called allowance. The company will pay for activity and that will be provided to you is called perquisite. सिंपल है। अगर कंपनी कार खरीद के कार के ड्राइवर के साथ आपको दे के ऑफिस से घर, घर से ऑफिस या कोई ऑफिशियल टूर के लिए आपको यूज़ करने के लिए बोलती हैं एंड यू नी नॉट स्पेंड ए सिंगल रुपी ऑन इट, एवरीथिंग इज बोर्न बाय द कंपनी इज कॉल्ड परक्विजिट। बट कंपनी आपको महीना 10,000 देती है और इट विल बी डायरेक्टेड यू दैट दिस 10,000 यू शुड यूज़ फॉर ट्रैवलिंग, ट्रांसपोर्ट के लिए कहाँ कहाँ जाना है आप यूज़ कर लीजिए। ऑफिशियल वर्क के लिए जो भी कार हायर करोगे, अपना कार यूज़ करोगे, बाहर से बस में जाओगे, तुम्हारी मर्जी, 10,000 आई विल गिव यू, दैट इज़ कॉल्ड अलाउंस। सो परक्विजिट भी हमारे लिए फाइनेंशियल इंसेंटिव है। अब नॉन फाइनेंशियल में बहुत सारे होते हैं जहाँ पे हम मॉनेटरी टर्म्स में नहीं देंगे, बट इंडिविजुअल कैन बी सेटिस्फाइड बाय साइकोलॉजिकल नीड्स, इमोशनल नीड्स होंगे और दिस विल हेल्प इन मोटिवेटिंग द एम्प्लॉयज़। जैसे नॉन फाइनेंशियल में हम देख सकते हैं कि स्टेटस, आप ऑर्गेनाइजेशन में किसी एम्प्लॉय को एक अच्छा सा पोजीशन में बता दीजिए कि आप आज इफ़ यू आर वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन, इफ़ यू आर गिवन लाइक हायरार्किकल चार्ट होता है ना कि एक वर्कर होता है, सुपरवाइज़र होता है, उसके बाद हेड होता है, मैनेजर होता है, मैनेजर के ऊपर ऐसा हायरार्की में जब देख रहे हैं तो व्हेन द वर्कर इज़ गिवन ए चांस, इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल बिकम ए सुपरवाइज़र, दैट इज़ गॉट गिविंग ए स्टेटस, दिस इज कॉल्ड एज अ स्टेटस। यानी यहाँ की खाली हायरार्की में इंप्रूवमेंट हो रहा है, मॉनेटरी बेनिफिट्स कुछ नहीं। ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट मतलब वी विल प्रोवाइड हिम environmental, मतलब this talks about the environmental characteristics of an organization, which generally employees are given a freedom of doing anything। मतलब ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट, ऑर्गेनाइजेशनल एनवायरनमेंट इस तरह से प्रोवाइड किया जाएगा कि वर्कर्स विल वर्क फ्रीली एंड विदाउट हैविंग एनी रिस्क फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन, वो होगा ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट। करियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मतलब यू विल बी गिवन ए चांस ऑफ upgrading in your career, that opportunity will be given to you, so this is non-financial incentive। job enrichment, higher level of knowledge and skills, ये सब जो जिस जॉब में रहेगा उस जॉब में लाइक what you can say as it refers to the designing of jobs in such a way that it involves higher level of knowledge and skill, और ऐसे अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा। वर्क एक्सपीरियंस आपको अच्छा मिलेगा इसमें, यू विल बी गिवन ए गुड वर्क एक्सपीरियंस विथ हायर लेवल ऑफ नॉलेज एंड स्किल रिक्वायरमेंट उसमें अगर इन्वॉल्व होते हैं तो दैट वाज जॉब एनरिचमेंट। मतलब तुम्हारे जॉब में जो हायर लेवल ऑफ नॉलेज और स्किल यूटिलाइज किए जैसा आपका मोटिवेट किया जाएगा। देन जॉब सिक्योरिटी, दिस एवरीबडी नोज, सिक्योरिटी मीन्स गिविंग ए परमानेंसी इन द वर्क, और आफ्टर लाइक आपका कुछ प्रॉब्लम होता है तो उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड होता है। So securing among the employees that employees are not worried about the future, उसके लिए कोई फ्यूचर के लिए वरी ना हो, so that today you can work with happily। and employee recognition program, employee को recognize करना, that means giving him a participation certificate, giving him appreciation letter, कुछ appreciation letter देते थे, you done a good job, you are an employee, best employee of the organization, award देना, या नोटिस बोर्ड में चिपका देना कि दिस एम्प्लॉय हैज़ डन वेरी वेल, और एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन एंड एम्पावरमेंट,
पार्टिसिपेशन में हम एम्प्लॉय को अलो करते हैं कि ही कैन पार्टिसिपेट इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इन ऑर्गेनाइजेशन where he can involve and he can freely give his suggestions. And then empowerment is empowers to subordinates the feel that they are important to the organization. वो create करने के लिए हम subordinates को और organization को एक तरह से environment create करते हैं. These are called non-financial incentives. So this is all about motivation, which we started in the previous class. Now we have concluded with financial and non-financial incentives. So exam में questions generally basically it will be asked about what is motivation and what are the characteristics and features of the motivation. So home assignment for you is you have to write the notes and you prepare the questions, answers for the questions. One is like what is motivation and what are the features and characteristics, that is features and importance of motivation. Explain about financial and non-financial incentives. ये दो इम्पॉर्टेंट है. एग्ज़ाम में आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जाएगा, केस स्टडीज इसमें पूछ सकते हैं कि ही विल गिव यू अ डिस्क्रिप्शन एंड ही विल बी आस्क्ड यू दैट व्हाट टाइप ऑफ इंसेंटिव इट इज़. So an example, it will be given that Mr. X is working in an organization at the managerial level, and once he was asked to participate in an activity where to recognize his services and excellency, there was a award is given to as the best employee in the organization. So identify what type of financial incentive or motivation is given to X. So now you need to identify what type of it, whether it is a financial or non-financial. So it is a non-financial और उसमें भी है employee recognition. So this is what the way we need to identify the case studies. Mostly one case study would be asked from this financial non-financial incentives में से. So students, go through this video and prepare the notes. And the next class we will be discussing about the concept of leadership, that is element of directing only.